we would like to invite the voices from all the three tiers of radio to share their bits and experiences on how radio has become a medium of preservation of folk music, local culture, and indigenous languages. So please welcome on stage our panelists, Ms. Subhashri Mohapatra, Joint Director News, All India Radio. Mr. Vikas Tiwari, Deputy National Programming Head, My FM. Mr. Brijen Pawar, President, Community Radio Association. RJ Rafia Rahim, Radio Mirchi Kashmir. And finally, our moderator, Mr. Rajiv Kumar Shukla, former ADG program, All India Radio. Namaskar. I understand it has been a long day, which is still continuing. But as has been said, pleasanter tidings are on the way. You will have a musical session. So this session, I think, is very important when you look at the perspective of radio in the context of human civilization. Because here the question is folk music and indigenous languages, that is preserving culture. I am reminded of a particular incident which took place during the Commonwealth Games held in Delhi in 2010. I was heading sports also at that time in All India Radio. We were having a review meeting. We had a review meeting every day. And certain anomalies of language used in the commentaries and reports was mentioned. These were mentioned while the review was going on. एक आदमी ने कहा कि साहब स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्ट में लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है. आई रिमेंबर. तो मुझे याद है कि मैंने भी कहा और लोगों ने भी ये बात दोहराई कि इन रेडियो लैंग्वेज को छोड़कर इम्पॉर्टेंट है क्या? बिकॉज इन टेलीविजन यू हैव द विजुअल मीडियम ऑल्सो. That visual language is also there. In fact, in television, the spoken language is there as a kind of it is assistant and interpreter. But in radio, it is the be all and end all, as far as the spoken word part is concerned. So, and again, when I talked of human civilization, so of course, as we understand from anthropology, that language started, communication started in the way of certain drawings etched on the walls of caves and all, and also some sounds which came out, which slowly became words. And then, along with the physical activities, to accompanying that, and then to sometimes to relieve the tedium, the music emerged. So basically the tribal music and folk music, tribal music and folk music, these are the forerunners of all kinds of music. So essentially this is something which is there, and if we do not remain cognizant of this, because today one of the challenges is that it's a very much today and now thing. There is a kind of collective insomnia, you know. When you talk of yesterday, you can talk of mostly of last decade. पुरानी बातों की याद गायब होती चली जा रही है. Essentially, कई सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं इट्स एन एज ऑफ फॉरगेटफुलनेस. भूल रहे हैं, हम साथ बहुत कम रहते हैं, परिवार के साथ बहुत कम रहते हैं. अभी बात हुई पिछले सेशन में कि मोबाइल आपके साथ रहता है और आप एक सोफे पर दो लोग बैठे होकर भी साथ नहीं होते. तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी भाषा है, जो आपका संवाद है, हिंदी की बड़ी मशहूर लेखिका है अनामिका, उन्होंने कहा एक बार कि भाषाएं बहनें होती हैं. सारी भाषाएं एक दूसरे से हमको जोड़ती हैं, हमें दूसरे इंसान का और अपने इंसान होने का बोध कराती हैं. तो इस अर्थ में जो भाषाएं हैं उनकी देखभाल, उनको बचा के रखना, क्योंकि यूनेस्को की ही रिपोर्ट के हिसाब से लैंग्वेजेस आर अंडर थ्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया भर में भाषाएं ख़तरे में हैं. छोटी छोटी कई भाषाएं गायब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं. ओरल ट्रेडिशन संकट में है. ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, कैसे करें?
किस तरह अपनी इस धरोहर को बचाएं, हाउ टू प्रिजर्व दिस, और व्हाट रोल हैज़ बीन प्लेड. सो आई कैन जस्ट mention in a very short duration. All India Radio is remembered for preserving many things, for contributing to green revolution, for development, for propagating the constitutional values after independence. Classical music is also one example, very bright example, and so is AIR's contribution in preserving the folk music, the tribal music, and so many different languages. I can tell you I have served at many places when I was in All India Radio in remote places like Bastar. It was being mentioned today that there are so many languages which are being used for news. In Bastar we have 6 dialects because some are Odia based, some are Telugu based, some are Marathi influenced. So basically our country is a huge kaleidoscope with so many diversities of every conceivable kind, and languages and dialects are one of the most prime examples. और हम उसे अपनी शक्ति मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं, उसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं. पर ये जो शक्ति और ताकत है, इसको हम वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको बचा के रखना भी ज़रूरी है. सो ऑल इंडिया रेडियो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग दीज थ्रू इट्स रूरल ब्रॉडकास्ट, थ्रू इट्स रूरल मैगजीन्स एंड ऑल. उसके बारे में अगर मौका लगेगा तो हम और बात करेंगे. पर अब रेडियो डजंट मीन ऑल इंडिया रेडियो ओनली. Now it is a question of the whole radio fraternity, which consists of private radio, community radio, and of course the public broadcast, that is All India Radio. So I will begin with, और हमारे साथ आरजे राफिया रहीम हैं जो रेडियो मिर्ची से हैं, कश्मीर से. कश्मीर में हैं इसलिए लैंग्वेज और डायलेक्ट्स को लेकर उनके अंदर एक समझदारी और दोस्ती का भाव तो होगा ही, मैं मान के चलता हूँ. क्योंकि मेरा बहुत रिश्ता रहा है रेडियो में, AIR में काम करते समय. फिर भी प्राइवेट रेडियो में काम करते हुए लैंग्वेज की खूबसूरती, लैंग्वेज की इंटीग्रिटी और डायलेक्ट्स को किस तरह से आप बचा पाते हैं अपने ब्रॉडकास्ट पर, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या कर पाते हैं और क्या करने की सोचते हैं? बहुत शुक्रिया. पहले वाकई में हम लोगों में ये अब देयर इज़ ऑलवेज अ पिंच ऑफ दोस्ती का और लहजे का फ़र्क होता है. बीइंग इन अ रेडियो वर्ल्ड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट के साथ साथ कि आप महज़ब तरीके से लोगों से बात करें, क्योंकि आप बहुत सारी ऑडियंस को कैटर करते हैं. इट्स नॉट जस्ट द यंगर पीपल, इट्स ऑलवेज बुज़ुर्ग लोग भी आपको सुनते हैं, आपको बच्चे भी सुनते हैं, आपको मिडिल एज लोग भी सुनते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना लहजा वैसा रखें और लोगों के मुताबिक आप बात करें. कश्मीर में रह के और वहाँ पे लोगों से बात करना थोड़ा बहुत मेरे लिए मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज़ व्हेन आई वेक अप मुझे हमेशा दिमाग में रहता है कि आज मैं अपने दोस्तों से ये बात करूँगी. और मुझे वाकई में ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे कॉल्स भी आती है. आई डू द इवनिंग प्राइम टाइम और वहाँ पे कॉलर इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है. तो जब मैं लोगों से भी बात करती हूँ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि द वे दे हैव एक्सेप्टेड इट. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना अपना पर्सोना है एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट हियर टू जज एनीबडी. लेकिन ऐसा है कि जैसे मेरा पर्सोना है, आपका डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है. मैं ज़्यादा लिटरेचर को लेके बहुत मुझे शेर व शायरी के साथ मेरा बहुत शगफ़ है, हमेशा से रहा है. और उर्दू लिटरेचर की जब तक हम बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं इसी को आगे, जैसे आप अभी कह रहे थे कि लैंग्वेजेस बहुत जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं वो कम होती जा रही हैं और लोग अब और ही भाषा मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग वो बोलते हैं. बट मेरा मानना है कि जब आप किसी भाषा में बात करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस भाषा के साथ इंसाफ करें. अगर आप उर्दू में, हिंदी में बात करते हैं आप उसके साथ इंसाफ करें. ऐसा नहीं कि हम मिक्सचर और लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये जो बोल रहे हैं रेडियो पे ये क्या बोल रहे हैं. ऑल्सो मैंने जब शेर व शायरी की बात की और कीपिंग द ऑडियंस इंटैक्ट, मैं एक सेगमेंट करती हूँ इंस्ट शायरी का, जहाँ पे मैं लोगों की ही उनका कलाम पढ़ती हूँ. एंड लाइक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे लोगों से बहुत प्यार मिला है, नॉट जस्ट फ्रॉम कश्मीर, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, लाइक ग्लोबली. जो भी लोग ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो मुझे अपना कलाम भेजते हैं और मैं उसको फ़ीचर करती हूँ. सो मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे फ़ीचर करती हूँ, रेडियो पे फ़ीचर करती हूँ. और जैसे कि आपने कहा कि हम हमेशा कोई चीज़ समझने में ऐसा ना हो कि हम
देर कर दें, जिसपे मुनीर नियाज़ी साहब लिखते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। सो हमें ये देर नहीं करनी है। बिल्कुल, हमें अपनी ज़बानों को जिनके ज़रिए हमने सपने देखे, बोलना सीखा, जिनमें माँ के दूध की गंध बसी हुई है, उसको बचाने में बहुत देर नहीं कर सकते हम, क्योंकि लैंग्वेजेस आर नॉट जस्ट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेजेस ऑल्सो ब्रिंग विद देम अ होल वे ऑफ लाइफ, मोहब्बत पैदा, मेमोरीज, कल्चर, सिविलाइजेशन, वैल्यूज़, सो मैनी थिंग्स. सो इसलिए भाषाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है. मैं अब शुभश्री महापात्र जी, जॉइंट डायरेक्टर न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जैसा मैंने जिक्र किया, मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, ये मैं रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में रहा हूँ, और पॉलिसी एक वहाँ सेक्शन होता है जो लैंग्वेजेस वगैरह को देखता है. तो मैं बता दूँ कि हिंदुस्तान के संविधान में अभी 8th शेड्यूल में देयर आर 22 लैंग्वेजेस. देयर वर 14 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली रिटन. More languages were added, and presently these are 22. And All India Radio's domestic service broadcasts in all these 22 plus English, which is, so it becomes a 23 language broadcasting behemoth, broadcasting organization. दुनिया के बाकी, जब हम कहीं बाहर जाते थे, बात करते थे, तो कई देशों के लोग चकरा जाते हैं कि इतनी भाषाओं में आप ब्रॉडकास्ट कर कैसे लेते हैं. और हमारा एक प्रोग्राम होता है, नेशनल सिम्पोजियम ऑफ पोइट्स, जहाँ सारी लैंग्वेजेस के पोइट्स आकर एक मंच से कविता भी पढ़ते हैं. सो बेसिकली ये हमारी अपनी खूबी है और खूबसूरती है और ताकत है. तो शुभश्री जी जो हैं वो इस पूरी परंपरा को साथ चल रही हैं. न्यूज़ का जिक्र पहले भी हो चुका है. आई होप शी विल हैव मच टू ऐड इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. देन वी शैल टॉक ऑफ फोक म्यूजिक लेटर ऑन. नमस्कार. एक्चुअली मैं न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न से हूँ, तो हम लोग का मैं न्यूज़ से ही बात शुरू करूँगी, क्योंकि हम लोग जो हैं ऑल इंडिया रेडियो में जो न्यूज़ है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, सही जानकारी सबके लिए दे, उसी के लिए हम लोग पॉपुलर हैं. तो जैसे कि ये जो राइटर्स ने पिछला 2 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सबसे ट्रस्टेबल ऑल इंडिया रेडियो को ही माना है, तो इसलिए हम लोगों का एक ही काम होता है कि हम सही इंफॉर्मेशन, चाहे बेशक थोड़ा लेट में दें, लेकिन सही इंफॉर्मेशन ही दें. क्योंकि हम लोग इसको हमेशा, कोई भी न्यूज़ आता है तो हम उसको गड़बड़ी में ब्रेकिंग न्यूज़ लगाने का मतलब उसमें कभी दौड़ में नहीं शामिल होते हैं. हमारा काम होता है उसको हमारा अपनी करेस्पॉन्डेंट, अपनी पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट सब अच्छे से क्रॉस चेक करे, पुलिस से बात करे, तभी जाके हम लोग कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, हम कभी भी इस जो आजकल का जो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो दौर चल पड़ा है उसमें कभी भी शामिल नहीं होते. तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि NSD जो है, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो जो है, 607 बुलेटिन हर दिन ब्रॉडकास्ट करता है, और दैट इज़ टू 92 लैंग्वेजेस. इसमें आपकी इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, इसमें आपकी डायलेक्ट्स भी हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं. तो हम लोग जैसे पूरा वेस्ट एशिया का जितनी भी लैंग्वेजेस है उसके लिए हम लोग बुलेटिन यहाँ से वो करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं. और जैसे आपकी ईटानगर है, इम्फाल है, जैसे कारगिल में एक छोटा सा लैंग्वेज है, उसमें भी हमारा बुलेटिन जाता है. पुर्गी, यस, पुर्गी लैंग्वेज पे. तो ऐसे में एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा ये जो है 75 लैंग्वेजेस का डायलेक्ट्स में हमारा हर दिन बुलेटिन ब्रॉडकास्ट होता है, जो कि मतलब आपको अगर लोगों के पास पहुंचना है तो उनका लोकल लैंग्वेज में ही पहुंचना पड़ेगा. तो जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 स्कीम 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट करके एक स्कीम लॉन्च किया है, वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है. लेकिन वहाँ के लोगों को कैसे पता चलेगा जब अगर आप उनका लोकल लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे. तो हम लोग का काम होता है कि हम लोग हर लोकल लैंग्वेज, हर लोकल डायलेक्ट में न्यूज़ को उनके वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि उनको पता चले कि सरकार जो है जितने भी पब्लिक बेनिफिट स्कीम्स चला रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है देश में, वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज में ही समझ में आएगा. तो ये हमारा सबसे बड़ा मतलब वो है कि सही जानकारी सबके पास अच्छे से पहुँच जाए. थैंक यू. आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपनी भाषा में बात की जाती है व्हेन थिंग्स आर कम्युनिकेटेड टू यू इन योर ओन लैंग्वेज एंड प्रीफरेबली डायलेक्ट. क्योंकि पिछला सेशन जब चल रहा था, देयर वर टॉक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन.
So there, because I have been associated with that activity also, तो the last mile connectivity जिसे हम कहते हैं, वहाँ all the messages, all the technical jargon which is coming to you, I'm talking presently of disaster management. So a lot of scientific and technical jargon is coming to you. You have to make it broadcast worthy, and then you have to put it out in language and dialect which is comprehensible to the people for whom it is intended. तो ये बहुत important part होता है. आपने डायलेक्ट्स की बात की, मैं डायलेक्ट के बारे में बात करते हुए मुझे एक क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में ह्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. आई ज्वाइंड एट रायपुर विच इज़ इन छत्तीसगढ़, एंड देयर आई वॉज टोल्ड दैट इन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम विच वॉज अ रूरल प्रोग्राम, what to speak of English, even Hindi words were not, I mean, appreciated. You were supposed to stick to Chhattisgarhi only. So one day I told my first instructor जो मेरे साथ थे कि आप कहते थे अंग्रेजी छोड़ हिंदी भी नहीं बोल सकते, पर यहाँ तो अंग्रेजी में लोग रोज़ बोलते हैं, रूरल प्रोग्राम में शुरू में ही बोलते हैं. उन्होंने कहा क्या बोलते हैं? मैंने कहा वो बोलते हैं हेलो. तो उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता. मैंने कहा बिल्कुल होता है, रोज़ शुरू ही में हेलो बोलते हैं, आखिर में हेलो बोलते हैं. तो फिर हम लोग साथ बैठे सुनने के लिए, और जब वो आया तो हंसना शुरू किया. एक्चुअली द टर्म वाज घलो. घलो मीन्स भी इन छत्तीसगढ़ी. तो आपको नमस्कार सुनने वालों को भी नमस्कार. सो दे वुड से संगवारी मल्ला घलो, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद द टर्म घलो, सो आई इंटरप्रेटेड इट एज हलो, बिकॉज दैट इज अ टर्म विच आई नो. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रेडियो, दैट व्हेन यू स्पीक, शी टॉक्ड ऑफ being careful that you are not misunderstood. So because you only hear it, so you have to be careful that it is distinctly spoken. अभी पिछले एक सेशन में एक मैडम ने कहा था कि नेकलेस के पर्ल की तरह स्पोकन वर्ड में साफ एक एक दिखना चाहिए. तो दैट क्लैरिटी ऑफ डिलीवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर टॉकिंग ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हिसाब से भी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया के हिसाब से भी, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस आर a wonderful phenomenon. जितना इनको बढ़ना चाहिए था हमारे देश में, मेरी भी राय है, हमारे बहुत मित्रों की राय है, बहुत गुंजाइश बाकी है और बढ़ना चाहिए. पर अभी जो सिचुएशन है उसमें किस तरह से ये काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से डायलेक्ट्स को और हमारी फोक कल्चर को प्रिजर्व करने में, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा. हमारे साथ हैं, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव विद अस मिस्टर ब्रजेंद्र पवार. ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, और हम उनके साथ पहले भी इंटरेक्ट कर चुके हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे. तो वो बताएं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक किसी के दिल के अगर होना चाहिए तो कम्युनिटी रेडियो के दिल के ही नज़दीक होना चाहिए. अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सेशन सुना उसमें बहुत ही लाइवली, बहुत ही मतलब अच्छी चर्चा हुई पीस के बारे में, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हुई, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे इंसर्जेंसी एरियाज़ की भी हुई. अब जो प्रिजर्विंग कल्चर और फोक म्यूज़िक और इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ये समझिए कि एक समाधान है, ये एक बेस है जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए. एक ये समझिए आपके, अगर हम अपने कल्चर को पहचानते हैं, अपनी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को प्यार करते हैं, अपने फोक म्यूज़िक को प्यार करते हैं, तो वो सॉफ्टनेस देता है हमें, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की प्रेरणा वहाँ से मिलती है. और मैं समझता हूँ कन्फ्लिक्ट शायद आएगा भी नहीं अगर हम फोकस करेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर. और जहाँ जहाँ ये इश्यूज़ फोकस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ये खुराक मिल रही है समाज में, वहाँ वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियाँ नहीं हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये एक टॉनिक की तरह है, ये बाइंडिंग फोर्स है, ये प्रिजर्विंग कल्चर, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस और फोक म्यूज़िक. और इस काम को बेखूबी जो है वो कम्युनिटी रेडियोज़ कर रहे हैं. कम्युनिटी रेडियोज़ जो हैं सबसे यंग ब्रांड है, ये ब्रांड कहिए उसको, या एक सेगमेंट कहिए देश में. कम्युनिटी रेडियोज़ जो हैं उनको कोई फंडिंग गवर्नमेंट से उस तरह से नहीं मिलती है, उनको कोई कम्युनिटी से बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं मिलती है, उनको कोई अर्निंग मॉडल नहीं है उनका. मगर यहाँ पर कंटेंट जो है, हमारी पॉलिसी जो बोलती है वो 50% कंटेंट मैंडेटरी है, वो समुदाय से आना है. समुदाय से 50% कंटेंट आता है और वही समुदाय उसको सुनता है. तो टू वे ट्रैफिक है, वही लोग देने वाले हैं, वही लोग सुनने वाले हैं, और वो प्रक्रिया बराबर चलती है. और हमारा जो है, हमें बहुत सीमित दायरे में काम करने का मौका मिलता है.
बिना रिसोर्सेज के काम करने का मौका मिलता है। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पैसा हमारे पास नहीं है, ताकत नहीं है, कोई हमारा बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है, हमको नहीं मिलता है, मगर हमारी ताकत कौन है? हमारी कम्युनिटी हमारी ताकत है। और उस कम्युनिटी को जो जितने देश में रेडियो है, आज 415 रेडियो मैडम ने बताए हैं, तो 415 रेडियोज, दे आर रेसिप्रोटरी ऑफ द कल्चर, प्रिजर्विंग कल्चर। 24/7 हम कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि हमारा, क्योंकि कंटेंट ही हमारा कम्युनिटी से आ रहा है, हमारे यहाँ ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि भाई इसी ढंग से बोलना है। जैसा हमारा कम्युनिटी मेंबर बोलना चाहता है उसको हम प्लेटफॉर्म देते हैं आके बोलने के लिए, और वो बोलता है, और वो उस इंडिजीनियस भाषा में बोलता है, वो फोक कल्चर को वो प्रमोट करता है, वो जो है अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से बोलने का प्लेटफॉर्म उसको मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी रेडियोज़ का जितना बड़ा योगदान है, पिछले अभी 20 साल का इतिहास नहीं हुआ हमारा, 20 साल में जो कम्युनिटी रेडियोज़ ने काम किया है उसका कोई मिसाल नहीं है। अगर हमारी कमी है तो कमी कहाँ है? डॉक्यूमेंटेशन में कमी है। हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसको हम कहीं प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग, जो हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ना तो गवर्नमेंट इसको रियलाइज़ करती है, लिप सर्विस तो बहुत मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कम्युनिटी रेडियोज़ के बारे में, मगर जब फंडिंग की बात आती है, जब सपोर्ट की बात आती है, जब हम उसको मतलब ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, तो वहाँ पर कुछ बात नहीं होती है। तो अल्टीमेटली जो है, मैं समझता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 14 साल से मैं भी एक कम्युनिटी रेडियो चला रहा हूँ, एक छोटी सी संस्था मीडिया की है, उसी से मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमने कल्चर को जितने अच्छे ढंग से प्रिजर्व किया है। हम गढ़वाल की बात लें तो गढ़वाल में जो है मंदाकिनी की आवाज़, जब मैंने रिसर्च की इस टॉपिक पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे रेडियोज़ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मंदाकिनी की आवाज़ 2014 में रेडियो शुरू हुआ, और गढ़वाली कल्चर बड़ा रिच कल्चर है, वहाँ से बहुत गायक और बहुत कवि और ऐसे बहुत ही वाइब्रेंट सोसाइटी है वहाँ की। तो वहाँ पर जो बच्चों को, एक माधुरी नाम की लड़की, जिसको बातों बातों में गाना गाने के लिए उसको प्रेरित किया गया, रेडियो के लिए मटेरियल करने के लिए, एक भगवती नेगी, ये 2 लोग आज स्टार बने हुए हैं वहाँ पर। पिछले 2014 से लेके अभी समझिए 9 साल रेडियो को हुए हैं। ऐसी एग्जाम्पल्स हमारी कम्युनिटी में दुनिया भर की एग्जाम्पल्स मिलेगी, सिर्फ गढ़वाल में नहीं, हरियाणा में चले जाइए आप, तमिलनाडु में चले जाइए। जी कुमार साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब चीज़ें जो हैं, जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, वो हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, मगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम लोग उसको शोकेस नहीं कर पा रहे। दैट इज द, आई शैल कम बैक टू यू। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। ज़रूर। एक्चुअली जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, ऑल इंडिया रेडियो में एक्चुअली कुछ साल पहले अभी एक प्रोग्राम किया था, उसमें लोकगीत में जितने भी सारे लोग गीत थे उसको बुलाया गया था, और उनकी सारी की रिकॉर्डिंग हुई थी, और उसको डिजिटली आर्काइव भी किया गया है। उसमें 175 लैंग्वेजेस का जो है लोकल सॉन्ग्स जो है रिकॉर्ड किए गए थे 175 लैंग्वेजेस पे, और उसको डिजिटली आर्काइव भी। शुभश्री जी, आई मीन बहुत अच्छा हुआ आपने मेंशन किया। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम संस्कार गीत था, और एक्चुअली ऑल इंडिया रेडियो में तो ये जो फोक म्यूज़िक है इसको रिकॉर्ड करने का सिलसिला इट हैज़ बीन हैपनिंग राइट सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट गैदर्ड मोमेंटम एंड स्पीड, और लेकिन उसको एक डेफिनेट प्रोजेक्ट बनाकर संस्कार गीत में किया गया। सो वी हैव अ लॉट ऑफ हेरिटेज मटेरियल अवेलेबल इन द आर्काइव्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। मैं यहाँ थोड़ा सा, जो पवार साहब कह रहे थे, एक हल्का सा ट्विस्ट अगर दे दें, अब्राहम लिंकन की जो फेमस सेइंग है, तो कम्युनिटी रेडियो इज़ फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी एंड ऑफ द कम्युनिटी। तो वो एक इस तरह की बात है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है, और उम्मीद है कि तो अब मैं इसके आगे एक जो समस्याएं हैं उनकी बात भी करनी होगी। इसके पिछले पैनल में बात हो रही थी, और उस बहुत साफ साफ, बहुत ही ऑनेस्टली कहा गया कि जो प्राइवेट रेडियो है, इट इज़ रन ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू विच इज़ अर्न, वो बेसिक ज़रूरी है। अब जो एक पैरामीटर बना हुआ है, किस तरह की प्रोग्रामिंग आपको ज़्यादा रेवेन्यू लाती है, किस तरह के ऑडियंस को जब हम टारगेट करते हैं, तो उस तरह के ऑडियंस जिसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है, उस परचेजिंग पावर वाले ऑडियंस को जब आप टारगेट करते हैं, तब आपको ज़्यादा एडवर्टाइजर्स रेवेन्यू मिलती है, जिससे कि आपका
जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है उसकी इकोनॉमी जो है रोबस्ट बनी रहती है. तो आई एम नाउ गोइंग टू मिस्टर विकास तिवारी. आई थिंक ही हैज़ फोरसीन इट, डेप्यूटी नेशनल प्रोग्रामिंग हेड ऑफ माई FM. ये जो एक डायलेमा है, क्या ये डायलेमा है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इट इज अ डायलेमा, एंड द सेकंड इज हाउ डू यू मैरी दीज टू थिंग्स, द अर्ज टू preserve the languages, the dialects and culture, and also to make it into a viable commercial proposition. देखिए, आपने रेवेन्यू से इसको जोड़ने की बात कही है. जब ये डिस्कशन शुरू हुआ तो इस वक्त ये हॉल खाली था, क्योंकि लोग पेट भरने गए थे, कॉफ़ी पीने गए थे. लेकिन जब पेट भर गया तो भाषा पे डिस्कशन करना अच्छा लगता है, पूरा भरा हुआ है. तो रेवेन्यू तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. पेट भरा नहीं होगा तो भाषा पे कोई चर्चा नहीं करेगा. क्राइसिस के ऊपर लोग बहुत तालियां बजा लेंगे. तो भाषा पे चर्चा के लिए पेट का भरा होना ज़रूरी है. लेकिन एक बात और जाननी ज़रूरी है, वो ये कि हम सबसे बड़ी उम्र में अगर कोई है तो वो भाषा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है. और किसी ने बहुत खूब कहा है कि पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल ना देगा तुमको छाया तो देगा. तो मुझे लगता है कि भाषा वो छाया है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं सुकून देती है. आप बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं. लोग अक्सर कहते हैं प्राइवेट FM वाले भाषा का ध्यान नहीं देते. कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है लिखे हुए कि बक करते हैं RJ. पर एक सज्जन थे, राजस्थान से लखनऊ गए, तो लखनऊ में उनकी मुलाकात एक शायर से हो गई. तो शायर ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है गुलजारी. तो उसने कहा नहीं यार, तुम्हारा नाम गुलजारी नहीं हो सकता, गुलजारी होना चाहिए, गुलजार ऐसे गुलजारी. तो उसने कहा नहीं साहब, मेरा नाम तो गुलजारी है. उसने कहा कैसे हो सकता है यार, मैं उर्दू तुमसे बेहतर जानता हूँ, गुलजार है बाग बगीचा, हाँ तो गुलजारी होना चाहिए. तो उसने चश्मा पहना हुआ था, कलर्ड चश्मा था, उसने उतारा. बोले देखिए मैं बचपन से काड़ा हूँ, मेरी एक आँख गुल है और दूसरी जारी है. तो जो डायलेक्ट हैं, जो भाषा है, उसको अगर हम थोड़े से ह्यूमर के वे में पेश कर देते हैं प्राइवेट FM वाले, और उससे पेट भी भर जाता है, तो क्या बुराई. तो मुझे लगता है कि प्राइवेट FM इस बात को समझता है, और जब भाषा की संजीदगी की बात आती है तो उसको निभाता भी है. मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि भाषा सिर्फ बोलने का ही तजुर्बा नहीं है या बोलने की बात नहीं है. पॉजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भाषा देती है. और प्राइवेट FM चैनल ने जो काम किया है सर, मैं वही बताना चाहता हूँ कि उसने जिस तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया है और पकड़ा है, उसने कहीं ना कहीं आपके और मेरे बीच के जनरेशन गैप को भी दूर किया है. तो प्राइवेट FM ने रेवेन्यू को मॉडल बनाते हुए भी भाषा के लिए कुछ ना कुछ काम किया. इस पे मुझे एक वाक्य याद आया, जैसे आपने कहा कि हम कैसे वी प्ले विद द वर्ड्स. जैसे अभी सब यहाँ पे वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन दिस इज़ द मंथ ऑफ लव एंड ऑल ऑफ दैट. हालांकि मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती. मैं समझती हूँ कि हर महीने को हमें मोहब्बत का महीना बनाना चाहिए. मैं एक बार इसे शो करी थी और मेरा कंक्लूडिंग लिंक था. तो मैं प्यार की बात बोल रही हूँ कि कैसे हम अपने अल्फाज को मरोड़ते हैं. मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं आपसे कल मिलूँगी. फिर मैंने ऐसे कहा अच्छा सुने, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को लगना चाहिए कोई रोबोट नहीं बोल रहा है माइक के पीछे, इंसान ही हमारे जैसे इंसान है. तो मैंने कहा अच्छा सुने, दिल और चार्जर कभी किसी को नहीं देना, कमबख्त लोग जला के वापस कर देते हैं. So this is how you play with your words. And आप अपनी लैंग्वेज में जब आप ये बोलते हैं तो ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज लोग आपको ज़्यादा समझते हैं. So this is what I also want to say कि जैसे प्राइवेट FMs या जैसे जो भी रेडियो वर्ल्ड की बात करूँगी मैं, हम कश्मीरी बोलते हैं. कश्मीर में कश्मीरी देयर इज़ हमारी रीजनल लैंग्वेज है. वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, लेकिन हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है दैट इज़ कश्मीरी. सो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आपने इतने अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट्स सबने शेयर किए, व्हाट आई डू इज़, चूँकि हम रेडियो पे अक्सर हिंदी पंजाबी ऐसे म्यूज़िक चलाते हैं, अब अपनी लैंग्वेज को तो प्रिजर्व करना है जिसका ओरिजिन है. सो व्हाट आई डू इज़ कि जो हमारे लोकल या ग्लोबली रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट्स हैं कश्मीर से, उनको मैं अपने शो पे लाके हम बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में, कश्मीरी म्यूज़िक के बारे में या फिर कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में, जो कि बाकियों को इंस्पिरेशन देता ही देता है. हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. ऐसा नहीं कि जब हम ज्ञान
बैठने ज्ञान देने बैठ जाएंगे तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो सारे लोग, कोई ना कोई तो होगा जो आपसे रिलेट कर पाएगा। एक 30 सेकंड की छोटी सी बात मैं कहूँगा सर, आप क्योंकि रायपुर में सबसे पहले ही आपकी पोस्टिंग थी, तो छत्तीसगढ़ में हमारा एफएम स्टेशन है, रायपुर में ही है। आई नो। तो वहाँ हम सुबह एक सेगमेंट चलाते हैं, उसका नाम है सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। उसमें एक छत्तीसगढ़ भाषा का एक शब्द पूछता है आरजे और उसका जवाब देना होता है, राइट। भाषा को किसी ना किसी तरह से प्रमोट करने की कोशिश है। अब ये सेगमेंट जो है ये बिक गया, तो हमारे लिए तो दोनों काम हो गए, भाषा को भी संभाल लिया और पेट को भी संभाल लिया। क्या बात, वंडरफुल। सो वी लर्न दैट इट इज पॉसिबल टू मैरी द अर्ज टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, आवर लैंग्वेजेस, आवर कल्चरल heritage. I think I shall talk a little bit more about folk music, not I only. आपने मैडम महापात्र जी ने, she has already mentioned the efforts of All India Radio in this direction. Now about folk music, because I mean पवार साहब ने भी कहा that the community radio has created star folk singers. I would very humbly add that All India Radio had also done this a long time back. I have served at places like Chhatarpur and Rewa, where you have stars coming out in Bundeli and Bagheli and Chhattisgarhi and Malvi and Bhojpuri and all kinds of dialects. I'm talking of Hindi dialects only, लेकिन देश भर की हर भाषा की बहुत सी dialects हैं। हमारा देश बहुत विविधताओं का देश है। When I said All India Radio broadcasts in 23 languages, let me add that it also broadcasts in hundreds of dialects. तो और वो भी काफ़ी नहीं है, वो भी काफ़ी नहीं है, और भी लगातार ज़रूरत है कि उसको और बढ़ाया जाए और आगे तक जाया जाए। तो ये हो रहा है। But now there is one worry, along with commercialization, popularization and commercialization, that in the folk music there is a lot of, unholy elements being mixed. एक वल्गर किस्म का उसका एक फोक म्यूजिक का वर्शन तैयार होता है जो पॉपुलर किया जाता है और फिर वो आता है। एंड समटाइम्स, जिसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, झूठ दुनिया का एक चक्कर लगा लेता है, या कि खोटा सिक्का खरे को बाजार से बाहर कर देता है। तो एट टाइम्स वी फाइंड दैट दिस काइंड ऑफ इलिसिट फोक म्यूजिक, फॉर वांट ऑफ ए बेटर टर्म आई वुड से, और ये नकली जो फोक म्यूजिक है ये आता है। फिल्म म्यूजिक में भी हम पाते हैं कवर वर्जन्स आते हैं और एक नई चीज़ उस तरह से होती है। हाउ डू यू लुक एट इट, दिस फिनोमिनन, दिस काइंड ऑफ वल्गराइजेशन ऑफ फोक म्यूजिक एज इट वेयर? बिकॉज फोक म्यूजिक के साथ तो भी तो हमारे घर की तमाम रस्में, हमारे खेतों के तमाम कामकाज, तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, सारे संस्कार जो जुड़े हैं, एवरीथिंग विच हैपन्स इन अवर लाइव्स, उन सब के साथ फोक म्यूजिक जुड़ा हुआ है। अगर उसके साथ अगर बहुत एक सीमा से आगे, ह्यूमर इज़ फाइन, शादियों में गाली दी जाती है, बहुत खुल के गाली दी जाती है, बट ह्यूमर इज़ फाइन, लेकिन एक लिमिट है जिसके आगे वो भद्दा और वल्गर हो जाता है और सेक्सिस्ट हो जाता है और तमाम चीज़ें, मिसोजिनी आ जाती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं चाहूँगा कि आप एक मिनट में इसका जवाब दें। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। फोक म्यूज़िक में बहुत तरह के एलिमेंट्स भी आ गए हैं और शब्द भी इस तरह के यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा छोटे छोटे, जिससे आपको पता लगेगा कि प्राइवेट एफएम किस तरह से कर रहे हैं। हम माई एफएम में, हम पंजाब में अभी हमने एक बड़ा ज़ोरदार काम किया। हमने कोक स्टूडियो तो चलता ही है, हमने फोक स्टूडियो बनाया, और हमने फोक स्टूडियो में, हम चाहते तो किसी भी नए सिंगर को भी ले सकते थे, हमने लिया गुरदास मान साहब को। ना 65 साल के जवान गुरदास मान साहब, लेकिन उसका प्रोसेस ये रखा कि जो फोक सिंगर्स अच्छा गाते हैं वो आइए, उनका कंपटीशन होगा, और जो विनर होगा पंजाब रीजन से वो गुरदास मान जी के शो से पहले गाना गाएगा और गुरदास मान जी उसको फेलिसिटेट करेंगे। ना ये तो एक बात हो गई, हमने वो सिंगर चुना, गाया। आप कह रहे हैं इतना वल्गरिटी है, सब कुछ है। गुरदास मान जी के शो में, गुरदास मान जी आज के सिंगर से भी ज़्यादा पैसा लेते हैं, बाय द वे, कमर्शियली मैं आपको बता दूं। 1200 का ऑडिटोरियम, बुक माई शो में टिकट बुक किया, पूरा का पूरा बिक गया, लोग नाच रहे थे। आज भी जो सच्चा है वो खरा है सर, और सदियों तक चलता रहेगा, कोई कमी नहीं आई। गुजरात में कीर्तिदान गढ़वी और उस्मान मीर, हमने एक उनका शो किया, फ्री ऑफ कॉस्ट पास बांटे, उसके फ्री पासेस, 25,000 की क्राउड हुई और साबरमती नदी के उसके किनारे आराम से बैठ के लोगों ने देखा। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको लेते हैं, बट आप सही कह रहे हैं कि वो ज़्यादा दिन का नहीं है सर, वो फेड है, और ये शायद लंबा फैशन जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, वो आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। रफिया, आप See, I'll just try to conclude it. On- I should- मेरा मानना है कि जब आप
ऑडियंस की नब्ज़ पकड़ते हैं ना, तो आपकी सक्सेस हो गई। ऑल्सो कश्मीर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, जैसे देयर इज़ दिस ट्रैक, आई एम लाइक सॉरी टू लाइक यूज़ the line of this track. I just don't like this track at all. There is this track, कोई कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा. So we just try to play it in our studio एक बार, क्योंकि आपका जो list है songs का वो बन के आता है. We got so much of backfire कर गया और bad response आ गया. तो लेकिन हमें ये कश्मीर की ऑडियंस में नहीं चलाना था, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन पैरामीटर. ऑल्सो मुझे लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप ऑडियंस को देखते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, सो वी प्ले कोक स्टूडियो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ वेल, एंड ऑल्सो वी प्ले वेरी सूदिंग एंड सटल म्यूज़िक. पंजाबी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये जो हम अभी बात कर रहे हैं विच इज़ मोर पॉपुलर इन यंगर जनरेशन, अभी जेन जी की जब हम बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. जो जितने भी ट्रैक्स आते हैं, लोग ट्रेंड के साथ, वो इतना खुजा के वो ट्रेंड के साथ जाते हैं कि बिल्कुल एकदम से वो स्किन उठ जाती है जब हम किसी चीज़ को खुजाते हैं. ऑल्सो ये चीज़ें मैं सुबह ही किसी से बात कर रही थी कि जब हम ऐसा कोई प्ले करते हैं जो लोग सुन पाएँ, जो एक बाप अपनी बेटी के साथ सुन पाए, जो या देख पाए कोई भी कंटेंट, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, या जो एक माँ अपने बेटे के साथ देख पाए, वो इटर्नल है. और तब आपकी जीत है, और तब आप लोगों के दिलों में और लोगों के जहन में बैठ जाते हैं. ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ट्रेंड ख़त्म होके आप भी ख़त्म. So credibility has to be maintained, and a minimum level of soberness, dignity also has to be catered That is to. what I believe. Yeah, strive for. Although I'm also from Gen Z. but पवार I साहब, just- कोई आप लास्ट में कोई बात, आपने काफी कुछ कहा था और कुछ कहना चाहें? क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो आपने क्रेडिबिलिटी का वो मेन इशू है. क्रेडिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, जहाँ हम कम्युनिटी रेडियोज़ की बात करते हैं, तो हम क्रेडिबिलिटी हमारी कम्युनिटी में हमें कोई भी रास्ते में पकड़ के पूछ सकता है, आपने ये क्या किया, You are आपने क्या always चलाया. accountable. वी आर ऑलवेज अकाउंटेबल. और हम लोग जो हैं कम्युनिटी रेडियोज़ के करीब 17-18 साल के इतिहास में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कभी हमें कोई वार्निंग नहीं मिली. तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो कम्युनिटी रेडियो जो है वो आंसरेबल है अपनी कम्युनिटी को, और कम्युनिटी के लोग ही आके जब काम कर रहे हैं तो वो गलत काम क्यों करेंगे. बढ़िया. हाँ, उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं. ऑल इंडिया रेडियो में सेलेक्टिव लोगों को मौका मिलता है. कमर्शियल रेडियो का एक दुनिया है, मगर कम्युनिटी रेडियो के दरवाजे सबके लिए खुले हैं. और जो वहाँ आता है अपना प्रोग्राम देने के लिए, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि मैं कोई गलत काम ना करूँ. और हमारे फिल्टर्स हैं, हमारी गेट कीपिंग है. तो एक और बड़ी जोरदार चीज़ है सर, वी आर प्राउड ऑफ इट. कई कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के आरजेस कमर्शियल रेडियो पे भी आते हैं, उनका भी बड़ा स्वागत होता है, बड़े अच्छा काम करते हैं वो. डेफिनेटली ट्रेनिंग ग्राउंड है. कम से कम विकास जी, that's a very good thing. 21 जो वो हैं मेरे अपने रेडियो से, सोलन के रेडियो से पिछले 14 साल में, आई एम प्राउड टू से 21 लोगों को ट्रेन करके हमने उनको बोला दाल रोटी चाहिए तो यहाँ काम करो जी. बढ़िया. अगर उस लेवल पे जा सकते हो, आप रणजी प्लेयर हैं सर, कमर्शियल रेडियो आप रणजी हैं, रणजी क्रिकेट के. विकास जी, मैं ये कहूँगा, बहुत अच्छी बात आपने की. देखिए, ये कई बार लगता है लोगों को कि प्राइवेट रेडियो, पब्लिक सेक्टर रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, इनमें कोई आपस में कंपटीशन तो होगा ही. कंपटीशन इज ए हेल्दी थिंग, लेकिन फाइनली वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ रेडियो फ्रेटर्निटी. हम रेडियो बिरादरी के लोग हैं. आज वर्ल्ड रेडियो डे हम सबका उत्सव है. इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ रेडियो एज सच. तो इस हम सब के लिए उत्सव की चीज़ है. अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे कम्युनिटी रेडियो के लोग मैक्सिमम यहाँ बचे हुए हैं, अभी ज़्यादातर लोग हैं, एक कॉम्प्लेक्स हम कैरी मत करें. कम्युनिटी रेडियो है, उसको कमर्शियल रेडियो बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसको ऑल इंडिया रेडियो बनाने की कोशिश मत कीजिए. हमको गर्व होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम चलें. और जो हमारा जो बैंक है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपस में एक्सचेंज कीजिए. हमारा एक इशू, बहुत बड़ा इशू है, जो ये म्यूज़िक कंपनीज़ का है. इसको लेके बहुत समस्या आ रही है, और मुझे भी बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि वो थ्रेट कर रहे हैं कि हमारा क्यों कंटेंट चला रहे हो. हम क्यों चलाएंगे उनका कंटेंट? हमारा अपना कंटेंट इतना रिच है. आपस में शेयर कीजिए उसको, आपस में शेयर कीजिए. हिंदी स्पीकिंग रेडियोस जो है, हिंदी का कंटेंट शेयर कीजिए आपस में. अपनी कम्युनिटीज़ की सक्सेस स्टोरीज, अपना फोक म्यूज़िक, अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज, अपना कल्चर, उसको बांटिए हिंदी सेगमेंट्स में. हम रीजन वाइज और थैंक यू मिस्टर पवार. आई थिंक हाँ, आपने बात कह लैंग्वेज दी वाइज अपनी. हम लोग इकट्ठे हों.
जी जी। और हम एक क्रेडिबल और एक बहुत शानदार मीडियम बन के मतलब आपने ये कहा कि रेडियो बिरादरी में रहते हुए भी हम सब अपनी अपनी पहचान कायम रखेंगे। फाइनली शुभश्री जी, आपको कुछ और अगर एक आध लाइन ऐड करनी है क्या? बस यही बोलना है कि जो भी सॉन्ग्स जो है लोकल सॉन्ग, जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है, जैसे रंगवती रंगवती का नक्कल होता है, संबलपुरी का फेमस कैसे हुआ है सब, क्योंकि वो आज इट इज है, जो उसका पहला फॉर्मेट है, जो ट्रेडिशनल लोकल सॉन्ग है वही है वो। उसको अगर आप उसको डाइल्यूट कर देंगे तो उसका पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा, क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं हुआ इसलिए इतनी पॉपुलर हो गया है कि सिर्फ संबलपुरी डायलेक्ट का एक सॉन्ग है जिसको आजकल पूरा देश में लोग जानते हैं। Wine. I am reminded now of a particular line in the very famous Booker Prize winning novel God of Small Things by Arundhati Roy, जिसमें वो लिखती हैं एक जगह एक उसका कि we think that the news stories are the most interesting, but my experience says that the most interesting stories are those which we know by heart. हम बार बार रामलीला देखते हैं, बार बार कथकली देखते हैं, बार बार महाभारत कथा देखते हैं, उसमें कुछ नया अर्थ हम खोजते हैं अपने समय के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद वो हमें सबसे प्रिय होती हैं। तो जो हमारी बोलियां हैं, हमारी भाषाएं हैं, दीज आर, ये माँ के दूध की तरह से इनकी खुशबू हमारे साथ रहती है। और जैसा कहा गया कि जिसमें जो सच्चापन रहेगा वो बना रहेगा। आज एक हमारे पहले के पैनल में एक चर्चा हुई थी, मुझे लगता है कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जिक्र कर दूँ। आज वर्ल्ड रेडियो डे है। दो बहुत ही एमिनेंट ब्रॉडकास्टर्स को हमने कल और परसों खोया है। लोकेंद्र शर्मा विविध भारती के बहुत ही लीजेंडरी आइकॉनिक ऑफिसर थे, उनकी परसों डेथ हुई। और शरद दत्त जो बहुत बड़े टेलीविज़न के आदमी जिन्होंने किताबें भी लिखी और प्रोग्राम बनाए, उनकी कल डेथ हुई है। हम उनको याद करते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम किया है जो हमारे लिए माइलस्टोन है। आप सब लोगों ने बातचीत की, ये विषय हरि अनंत हरि कथा अनंता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल है। तो हम अपनी भाषा से प्रेम करते रहेंगे। और आखिरी बात गांधी जी को याद करते हुए जिन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद हों, मैं चाहता हूं कि सब तरफ से पूरी दुनिया से ताज़ी हवा मेरे पास बिना रोक टोक के आए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस हवा का झोंका इतना तेज़ हो कि मेरे पैर मेरी अपनी ज़मीन से उखड़ जाएं। तो हमारे पैर हमारी ज़मीन पे बने रहें और हम पूरी दुनिया की हवा हम तक पहुँचे, हम सबको साथ लेकर चल सकें। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने अपनी बात शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद।